Ethical cognitivists takes the views of psychological cognitivism एंड सिमेंटिक कॉग्निटिविज्म टुगेदर। जो एथिकल कॉग्निटिविस्ट्स हैं ना, वो दो तरह के व्यूज़ लेते हैं। एक तो साइकोलॉजिकल कॉग्निटिविज्म का व्यू भी लेंगे और सिमेंटिक कॉग्निटिविज्म का भी व्यू लेंगे, और दोनों साथ में लेंगे। सो सिमेंटिक हम लोगों ने सीखा था। सो सिमेंटिक कॉग्निटिविज्म का मतलब कोई भी स्टेटमेंट आपका ट्रू फॉल्स हो सकता है। साइकोलॉजिकल कॉग्निटिविज्म में हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन मॉरल एक्शन पे वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ओके, सो एथिकल कॉग्निटिविस्ट्स जो होते हैं वो व्यूज़ लेते हैं साइकोलॉजिकल कॉग्निटिविज्म और सिमेंटिक कॉग्निटिविज्म का साथ में, एक साथ। मोरल रियलिज्म क्या है? मोरल रियलिज्म होल्ड्स दैट द मोरल स्टेटमेंट्स एक्सप्रेस अ बिलीफ एंड दीज बिलीव्स आर रिगार्डेड एज माइंड इंडिपेंडेंट फैक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। माइंड इंडिपेंडेंट फैक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एकदम सही बात है। ये क्या होता है ना कि मॉरल रियलिज्म बताता है कि कोई भी मॉरल जो स्टेटमेंट्स है ना वो आपके बिलीफ को एक्सप्रेस करता है, और ये जो बिलीव्स है ना वो रिगार्ड किया जाता है कि आपका माइंड इंडिपेंडेंट फैक्ट्स क्या है, आपका माइंड इंडिपेंडेंट फैक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड क्या है। Moral realism holds that the moral statements express a belief and these beliefs are regarded as mind independent facts of the world. Mind independent facts of the world. Beliefs are regarded as what? Mind independent facts of the world. Mind को छोड़ करके facts of the world पे वो डिपेंड करता है। सो माइंड इंडिपेंडेंट, माइंड इंडिपेंडेंट का मतलब माइंड से नहीं सोच रहा है, जो भी फैक्ट्स है वर्ल्ड के उस पर ध्यान देना है। सो मोरल रियलिज्म होल्ड्स दैट द मोरल स्टेटमेंट्स एक्सप्रेस अ बिलीफ and these beliefs are regarded as mind independent facts of the world. Okay, ethical naturalism क्या होता है? holds that there are objective and natural moral properties. ethical naturalism जो होता है ना वो होल्ड करता है कि there are objective and natural moral properties होते हैं। जो there are objective and natural moral properties, जो properties होते हैं वो objective and natural moral properties होते हैं। so ethical naturalism क्या है? ethical naturalism होल्ड करता है कि there are objective and natural moral properties. So ethical cognitivists take the views of psychological cognitivism and semantic cognitivism together. Moral realism holds that the moral statements express a belief and these beliefs are regarded as mind independent facts of the world. Ethical naturalism holds that there are objective and natural moral properties. Ethical cognitivists takes the views of psychological cognitivism and semantic cognitivism together. Moral realism holds that the moral statements express a belief and these beliefs are regarded as mind independent facts of the world. Ethical naturalism holds that there are objective and natural moral properties. Ethical cognitivists take the views of psychological cognitivism and semantic cognitivism together. Moral realism holds that the moral statements express a belief and these beliefs are regarded as mind independent facts of the world. Ethical naturalism holds that there are objective and natural moral properties. Ethical non-naturalism holds that the moral properties are entirely different from the natural properties. Ethical non-naturalism holds that the moral properties are entirely different from the natural properties. The common sense है। ethical naturalism मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव है ना आपका, जो भी आपके मॉरल प्रिंसिपल्स है ना वो नेचुरल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड होंगे। नेचुरलिज्म है तो मॉरल प्रॉपर्टीज और नेचुरल प्रॉपर्टीज सेम होंगे। और एथिकल नॉन नेचुरलिज्म ये बिलीव करता है कि आपका जो मॉरल प्रॉपर्टीज है ना वो नेचुरल प्रॉपर्टीज से अलग होगा। सो द मेन कंटेंडर ऑफ नॉन नेचुरलिज्म इज जीई मूरे। जीई मूरे नॉन नेचुरलिज्म, इसको देखो याद करने के लिए कोई कनेक्शन बनाना पड़ेगा। नॉन नेचुरलिज्म है जीई मूरी, तो नॉन नेचुरलिज्म, तो हम इस देखो कनेक्शन बना देते हैं कि जब मैं पढ़ाई करता हूँ ना तो नॉन नेचुरल है, मतलब नेचुरली अगर मैं रहूँगा तो इसका मतलब मेरे को ब्रेकफास्ट करना है, डिनर करना है, लंच करना है, टाइम पे सब कुछ चलेगा। लेकिन अगर मेरे पास पैसे नहीं है या फिर मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं बाहर जा कर के खा सकूं, तो घर में क्या रखूंगा? मूढ़ी रखूंगा। तो जब मैं नॉन नेचुरल स्टडी करूंगा, मतलब नॉन नेचुरल दिनचर्या अपने रखूंगा, तो उस समय क्या खाऊंगा? मैं मूढ़ी खाऊंगा। बस ये कनेक्शन याद रखो, जीई मूरी, नॉन नेचुरलिज्म जीई मूरी। अकॉर्डिंग टू मूरी, moral properties do not exist in the outside world like natural properties and they are fundamentally simple non-natural properties. तो मूरी के अकॉर्डिंग नॉट नेचुरलिज्म, तो मूरी क्या बोलते हैं? मूरी बोलता है कि मॉरल प्रॉपर्टीज जो होता है ना वो आउटसाइड वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता रे बाबा, जस्ट लाइक नेचुरल प्रॉपर्टीज। सो नेचुरल प्रॉपर्टीज तो आउटसाइड वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है कि हाँ पता है पूरी दुनिया नेचर के अकॉर्डिंग ही चलेगी, लेकिन जो मॉरल प्रॉपर्टीज जो होता है ना वो आउटसाइड वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। दे आर फंडामेंटली सिंपल नॉन नेचुरल प्रॉपर्टीज। तो मूरी क्या बोलते हैं? नॉन नेचुरल है, वो सारी प्रॉपर्टीज नॉन
नॉन नेचुरल प्रॉपर्टीज, सिंपल नॉन नेचुरल प्रॉपर्टीज है। तो बताए नॉन नेचुरलिज्म किससे कनेक्टेड है? जी.ई. मूरी से। फिर है मॉरल सब्जेक्टिविज्म। मॉरल सब्जेक्टिविज्म होल्ड्स दैट देयर आर नो ऑब्जेक्टिव मॉरल प्रॉपर्टीज एंड इट इज देयरफॉर अ फॉर्म ऑफ मॉरल रियलिज्म। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। सब्जेक्टिविज्म आया ना, तो जहाँ सब्जेक्टिव आएगा तो वहाँ ऑब्जेक्टिव होगा नहीं। तो मॉरल क्या है? मॉरल सब्जेक्टिविज्म बोलता है क्या कि कोई भी ऑब्जेक्टिव मॉरल प्रॉपर्टीज नहीं होता, देर आर नो ऑब्जेक्टिव मॉरल प्रॉपर्टीज। इसीलिए कि क्या है, किसका फॉर्म है ये? रियलिज्म, मॉरल रियलिज्म का एक फॉर्म है। सो अकॉर्डिंग टू मॉरल सब्जेक्टिविज्म, मॉरल स्टेटमेंट्स आर मेड ट्रू और फॉल्स बाय द एटीट्यूड्स एंड कन्वेंशंस ऑफ द पीपल। हाँ बिल्कुल सही बात है कि जो मॉरल सब्जेक्टिविज्म है ना, अकॉर्डिंग टू मॉरल सब्जेक्टिविज्म, तो कोई भी मॉरल स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू और फॉल्स कैसे बनाया जाएगा? बाय द एटीट्यूड्स एंड द कन्वेंशंस ऑफ द पीपल। लोगों के एटीट्यूड और कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग उसको हम ट्रू या फॉल्स बोलेंगे। वो एप्ट नहीं है कि सबके लिए ट्रू है सबके लिए फॉल्स है, ठीक है? तो वो तो ऑब्जेक्टिविज्म आ गया। समझ में आ रही बात? आइडियल ऑब्जर्वर थ्योरी का मतलब क्या है? आइडियल ऑब्जर्वर थ्योरी ऑफर्स एन अकाउंट ऑफ द ट्रूथ एंड फॉल्सिटी ऑफ द मॉरल जजमेंट्स इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल और डिसअप्रूवल ऑफ एन आइडियल ऑब्जर्वर। देखो हम आइडियल ऑब्जर्वर की तरह से देखेंगे विदाउट बीइंग पार्शियल। आइडियल ऑब्जर्वर का मतलब कि हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, एक आइडियल ऑब्जर्वर मान करके उसको, वो अगर अप्रूव कर देगा तो ठीक है, अगर डिसअप्रूव कर देगा तो ठीक है। अगर अप्रूव कर दिया कि हाँ ये मॉरल है तो हम मॉरल बनेंगे। एक आइडियल ऑब्जर्वर अगर बोलेगा कि हाँ मॉरल है तो इमॉरल हो जाएगा। सो आइडियल ऑब्जर्वर थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑफर्स एन अकाउंट ऑफ द ट्रूथ एंड फॉल्सिटी ऑफ मॉरल जजमेंट्स इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल और डिसअप्रूवल ऑफ एन आइडियल ऑब्जर्वर। एन आइडियल ऑब्जर्वर कौन है? एन आइडियल ऑब्जर्वर इज अ पर्सन हु मेक्स मॉरल जजमेंट्स विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द सॉर्ट ऑफ contaminating biases or prejudices that tend to arise from the occupation of some particular point of view. Obviously आइडियल ऑब्जर्वर का वही मतलब है कि किसी का पक्ष नहीं लेना है, न्यूट्रल रह करके चीज़ों को करनी है। सो लेट अस रिकैप वंस अगेन। एथिकल कॉग्निटिविस्ट्स जो होते हैं ना, वो व्यूज़ लेते हैं साइकोलॉजिकल कॉग्निटिविज्म और सिमेंटिक कॉग्निटिविज्म दोनों का एक साथ। मॉरल रियलिज्म जो है ना, वो होल्ड करता है मॉरल स्टेटमेंट्स जो कि एक्सप्रेस करता है एक बिलीफ को, और ये जो बिलीव्स हैं वो रिगार्ड करते हैं माइंड इंडिपेंडेंट फैक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। Ethical naturalism holds that there are objective and natural moral properties. Ethical naturalism hold करता है कि there are objective and natural moral properties होती है। Ethical non-naturalism holds that the moral properties are entirely different from the natural properties. The main contender of the non-naturalism is G.E. Murray. Non-naturalism आपको सिखाया Murray. According to Murray, moral properties does not exist in the outside world like natural properties, and they are fundamentally simple non-natural properties. Moral subjectivism holds that there are no objective moral properties and there is therefore a form of moral realism. According to the moral subjectivism, moral statements are made true or false by the attitudes and conventions of the people. Ideal observer theory offers an account of the truth and falsity of the moral judgments in terms of approval or disapproval of an ideal observer. An ideal observer is a person who makes moral judgments without being influenced by the sort of contaminating biases or prejudices that tend to arise from the occupation of some particular point of view. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।